Good afternoon friends, India, and you are watching the show of The Hindu Actor. This show will help you enhance your vocabulary for your examination. Either you go for a banking exam or an SSC exam or any other kind of exam where English section is given. So let's start our vocabulary session. But prior to this, I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. So enjoy the video, keep watching, and at the end I'll give you a bonus tip how to learn these vocabularies with some funny tricks. Okay, that will help you to learn or to remember all those vocabulary for a long time. Let's start our vocabulary session with the first word that we have is very. So students, whenever you have given very, you can use this word in the sense of being alert, okay, being cautious, being alert, being careful about possible dangers. That means सावधान रहना. तो सावधान रहने की बात हो रही है. वेरी का मतलब होगा सावधान रहना. Now come to some synonyms. The first word that you have given is careful, cautious, and the circumspect is the most important word that you have given in your examination again and again. Right? Now come to the example. Be wary of strangers who offer you a ride. That means जब भी आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सावधान रहना है when you are offering, when somebody offers you a ride, right? Next sentence you have given is buyers should be wary of hidden cost while purchasing something. जो buyers हैं, जो खरीद करता है, उन्हें क्या होना चाहिए? Hidden cost से सावधान रहना चाहिए whenever you are purchasing something. जब भी आप कुछ purchase करते हैं तो be aware of it. Okay. Now come to the next word, students. Next word is contention, and the meaning of contention is विवादास्पद. आप बोल सकते हैं which is argumentative, which is disputive, which is disagreement. Okay, तो जब भी कोई चीज़ जो लड़ाई को क्रिएट कर दे, विवाद को, या किसी चीज़ को मुद्दा बना दे, ओके, जहाँ झगड़ा जिसकी वजह से हो जाए, उसे हम कहेंगे contention. Now come to some examples for this word contention, how we write this word or how to use this word in a sentence, right? My contention is that the scheme will never work. मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्कीम जो है ये वर्क नहीं करेगी. जब आप किसी चीज़ के, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में होते हैं तो अंडरस्टूड है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. तो सेम इज़ हियर कि वो पर्सन जो है वो उसके अगेंस्ट में इसलिए है बिकॉज ही नोज दैट, ही थिंक दैट दिस स्कीम विल नेवर वर्क. ओके, कि ये स्कीम जो है ये काम नहीं करेगी. नेक्स्ट वन इज़ वी आर इन ट्रबल. हम मुसीबत में हैं. दिस इज़ नो टाइम फॉर कंटेंशन. हम सब मुसीबत में हैं तो अभी झगड़ने का समय नहीं है, अभी विवाद का टाइम नहीं है. ओके, so students, now come to the next word that you have given is bygone. Bygone is very simple word. Bygone means जो चला गया, जो past में हो गया, which the thing which is related to past, the thing which is related to the previous time is known as bygone. I can say जो पुराना होता है, okay, जो कि पुराना है उसे हम क्या कहेंगे? Example for this word, how to write this word. She didn't want to tell about bygone days. वो बताना नहीं चाहती है. किसके बारे में वो बात नहीं करना चाहती है? बताना नहीं चाहती about her past time, okay, about her past days. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आर फैमिली वॉज वेरी पुअर इन द बाईगॉन एज. बाईगॉन एज, बाईगॉन एज का मतलब है पुराने टाइम पे, जो मतलब काफ़ी पहले मेरी फैमिली जो थी वो बहुत ही पुअर थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिसएंटेंगल. डिसएंटेंगल का मतलब समझिएगा. एंटेंगल का मतलब होता है किसी चीज़ का उलझना, कॉम्प्लेक्स होना. वहीं पे अगर आप इसके हमने डिस लगा दोगे तो अपोजिट बन जाएगा. अपोजिट वर्ड जो है वो क्या होगा? सुलझाना. दैट मीन्स फ्री फ्रॉम समथिंग. और यू कैन से एक्सट्रिकेट, remove, unravel is the most important word for your exam. Extricate as well. डिटैच, अननॉट. अननॉट को समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स. नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना. अननॉट कर देंगे दैट मीन्स गांठ का खुलना, गांठ को खोल देना. दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. तो प्रॉब्लम्स को सुलझाना हमारा क्या हो जाएगा? डिसएंटेंगल. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल्स फॉर द सेम वर्ड. I finally managed to disentangle myself, okay, फ्रॉम परप्लेक्सिटी. ओके, मैंने खुद को मैनेज किया. किस चीज़ से मैनेज किया? मैं जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जिस कन्फ्यूज़न में था, मैं उससे बाहर निकल गया. ठीक है, तो आई फाइनली मैनेज टू डिसएंटेंगल माई सेल्फ फ्रॉम, तो मैंने खुद को उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाला. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ही ट्राई टू डिसएंटेंगल हिज फिंगर्स फ्रॉम हर हेयर. डिसएंटेंगल, वो उसने कोशिश की अपने हेयर से अपने फिंगर्स को
क्या करने की, अपने हेयर्स को सुलझाने की, किससे, अपने फिंगर्स से. सो ही ट्राई टू डिसएंटेंगल हिज फिंगर्स फ्रॉम हर हेयर. ओके, now come to the next word that we have is avenues. So students, the next word we have is avenues. Avenues, right? Avenues का मतलब students, we can use avenues in two ways. The first one, which is used commonly in the sense of a broad road having trees on both sides. Avenues का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा रोड जिसके दोनों साइड बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हों, दोनों साइड ट्रीज लगे हुए हों, ऐसे रास्ते को हम क्या कहेंगे, एवेन्यूज. ओके, एंड द नेक्स्ट मीनिंग, इन द नेक्स्ट मीनिंग वी कैन यूज इट अ वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल अ प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ वे. ओके, कि किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, इस वे को, उस तरीके को हम क्या कहेंगे, एवेन्यू. ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा. तो यू कैन राइट रूट, पाथ एंड डायरेक्शन एज सिनोनिम फॉर दिस वर्ड. Now come to examples. Several avenues are open to us. मतलब हमारे लिए बहुत सारे avenues, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं. ओके, कहते हैं ना हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं. ओके, तो इन दैट मैनर वी कैन यूज़ एवेन्यू. नेक्स्ट मीनिंग में देखिएगा, द एवेन्यूज़ ऑफ द सिटी. एवेन्यूज़ ऑफ द सिटी बोला है, दैट मीन्स हम किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोड्स की बात कर रहे हैं. ओके, द एवेन्यूज़ ऑफ द सिटी, दैट मीन्स द रोड्स ऑफ द सिटी वर क्राउडेड विद पीपल. ओके, कि सिटी के जो रोड्स हैं वो क्राउडेड हैं, वो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे. ओके, किसकी भीड़ है, पीपल की भीड़ है. ओके, now come to the next word students, and the next word that we have is coalition. Okay, coalition means गठबंधन. Okay, that means you can say संधि. कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेरी गठबंधन होता है, जो टेम्परेरी अलाइंसेस होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, कोएलिशन. ओके, अ टेम्परेरी अलायंस स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे बात करते हैं, लाइक मान लीजिएगा कि भिवानी या किसी भी जगह पे आपके यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट में सीट्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी की है, लेकिन वहाँ उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जिसकी सीट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, लाइक बहुत सारे कोएलिशन हुए थे अभी लास्ट इलेक्शंस के अंदर भी. ओके, तो जब दो पार्टीज़ मिल जाती हैं कुछ समय के लिए, तो वो जो उनका मिलना है, वो उनका गठबंधन जो है, वो अलायंस जो है, वो पार्टनरशिप जो है, उसे हम क्या कहेंगे, कोएलिशन. राइट स्टूडेंट्स, now come to examples, and if I talk about synonyms, so affiliation is the most important word and coalition itself is the most important word for your exams. Okay, so don't forget these kind of words. And the example, how to write this word, the two parties have united to form a coalition. Okay, अभी अभी मैंने बताया कि two parties जो हैं वो फॉर्म हुई किस चीज़ के लिए, एक हुई किस चीज़ के लिए, इस गठबंधन से वो दो पार्टीज जो हैं एक हुई. नेक्स्ट देखिएगा, a serious split in the ruling coalition appeared soon after the election. मतलब कि अभी तो वो एक हो गई हैं, ऐसा है, और बट ऐसा फील हो रहा है, दैट मीन्स लिखा है ना appeared soon, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी. तो स्प्लिट का मतलब होता है टूटना, अलग होना. सो आई होप समझ में आ गया होगा. कोएलिशन का मतलब है गठबंधन, वो भी टेम्परेरी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, फॉर अ शॉर्ट टाइम. Next word that we have is escalating. Escalating means इंक्रीजिंग. ओके, इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से अगर किसी चीज़ की स्पीड या किसी चीज़ में बढ़त आती है, चाहे फिर वो कुछ भी चीज़ हो. ओके, तो इसको हम कहेंगे एक्सेलेटिंग. एक्सेलेटर, एक्सेलेटर आपने सुना है ना, तो एक्सेलेटर से ही हम याद रखेंगे. और यू कैन से बिकमिंग मोर सीरियस. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल, हाउ टू राइट दिस वर्ड. द फाइटिंग ऑन द बॉर्डर इज़ एक्सेलेटिंग. दैट मीन्स बॉर्डर पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनमें बहुत तेज़ी से वो मोमेंटम पकड़ रही हैं. ओके, the government is deliberately accelerating the war for पॉलिटिकल रीजंस. आपने देखा है ना कई बार जब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनमें आपसी कोई रंजिश होती है और जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो दूसरी पार्टी उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है, उसे ब्लेम्स लगाती है कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज़ फॉर पॉलिटिकल रीजंस ओनली. ओके, जैसे कि अभी जो पुलवामा वाला अटैक हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों ने बोला था कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के ही कहने पे हुआ है, ये फेक अटैम्प्ट था एंड ऑल दीज थिंग्स. सो द गवर्नमेंट इज़ डेलिबरेटली एक्सीलेटिंग. तो ऐसा लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है स्टूडेंट्स जानबूझकर.
जानबूझकर, इसको देख लीजिएगा, बूझकर, राइट। डेलिबरेटली का मीनिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक, ओके। तो जानबूझकर वो जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए जो लड़ाइयाँ हैं उनको बढ़ावा दे रही हैं, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्पियोनेज, ओके, दैट इज स्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब है स्टूडेंट्स जासूसी, और यू कैन से स्पाइंग, और यू कैन से सर्विलियंस, ओके। सो एस्पियोनेज वर्ड मीन्स टू स्पाई, जासूसी करना, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज अ क्राइम ऑफ एस्पियोनेज एंड कैरिड द डेथ पेनल्टी। दैट मीन्स कि एस्पियोनेज करना एक क्राइम है और कैरिड, और इसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटेंस की, सो नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज स्पियोनेज इज अ कैपिटल ऑफेंस इन दिस कंट्री। तो वही सेंटेंस है, वैसे ही सेम मैनर में लिखा गया है। ये कैपिटल ऑफेंस है, मतलब कि बहुत बड़ा जो है गुनाह है ऐसा करना, स्पियोनेज करना, जासूसी करना। यू कांट डू स्पियोनेज ऑन एनी कंपनी और एनी पार्टी और एनी अदर थिंग, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रिटेलिएट। रिटेलिएट बहुत अच्छा वर्ड है, मोदी जी ने अपने स्पीच में बहुत यूज़ किया है इस वर्ड को, क्योंकि जब भी चाइना की बात हुई है तो चाइना ने जब अपने स्टेटमेंट्स दी हैं अबाउट वॉर, अबाउट अटैक्स, तो मोदी जी ने हमेशा उनको एक रिवर्ट में बोला है कि यस, if you hit us, if you do something hostility, so we will definitely retaliate on you, okay। तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मुंह तोड़ जवाब देना, फाइट बैक करना, बदला लेना, स्ट्राइक बैक करना, all these are the synonyms for retaliate। मीनिंग समझ में आ गया, बदला लेना, ओके। देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इफ़ यू आर रूड टू मी, अगर तुम मुझसे रूड हो तो आई शैल रिटेलिएट विद इक्वल टू रूडनेस, ओके। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम मुझसे फालतू में गुस्सा हो, तो मैं भी तुम्हें उसी तरह से रिएक्ट करूँगा, तुम्हें रिटेलिएट करूँगा विद द इक्वल रूडनेस, ओके। मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही हैड ऑथराइजेशन फ्रॉम द मिलिट्री कमांड टू रिटेलिएट, कि उसके पास अथॉरिटी है, उसे मिलिट्री कमांड मिल गई है क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए, बदला लेने के लिए, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज अगेन nice word, you can say snowball, and snowball means the mean of snowball is a ball of packed snow। snow means आपको पता है ना, like जो बर्फ होती है, that's called snow। तो उसकी उस बर्फ़ के गोले को हम क्या कहेंगे, स्नोबॉल। ये तो एक कॉमन मीनिंग है इसका, ओके। अब इसके दूसरे मीनिंग पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इंक्रीज रैपिडली इन साइज एंड इम्पोर्टेंस, ओके। रैपिडली साइज और इम्पोर्टेंस में बढ़त होना क्या कहलाएगा, स्नोबॉल, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, पब्लिक सपोर्ट फॉर, जस्ट वेट अ मिनट, पब्लिक सपोर्ट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन हैज़ स्नोबॉल्ड। समझ में आ गया कि पब्लिक क्या चाहती थी कि CBI जो है इस चीज़ पे जितना ज़्यादा हो सके क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे। पब्लिक उसके सपोर्ट में थी, पब्लिक ऐसा चाहती थी कि इस चीज़ पे, इस इशू पे क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ओके। और अभी आपको पता ही है किस इशू की बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी अपील्स लगाई गई हैं कि जो सुशांत राजपूत वाला जो केस था उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पीपल थिंक दैट इट इज़ अ मर्डर केस और whatever जो भी है, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गुहार जो लगाई जा रही है, तो उसको उस चीज़ में जो बढ़त आ रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट में जा रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ इंक्रीमेंट in something is known as snowballed, okay। Now come to the next word students, and the next word that we have is laurels, okay। laurels का मतलब होता है, laurels I think दिखाई दे रहा है सबको, laurels यहाँ पे लिखा गया है। laurels के दो मीनिंग होते हैं again, okay। laurels we can use this word in with two meanings। the first one is it act as a small green tree with dark leaves, okay। एक छोटा सा ग्रीन पत्तियों वाला ट्री, जो चमकता हुआ ट्री हो, जिसकी पत्तियाँ चमकती हो, ओके, जिसकी लीव्स जो हैं वो बहुत शाइनी लीव्स हो, इस तरह के ट्री को हम लॉरेल्स कहेंगे। दूसरा अगर हम बात करें कि कहाँ इसे यूज़ किया जाता है, तो वी कैन यूज़ दिस वर्ड टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ़ करने के लिए भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ प्रेज, ओके। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉडेबल, अपलॉड, प्रेजवर्दी, ओके।
Now come to examples for this word. She won laurels for her first novel. Okay, तो उसे तारीफ मिली, उसे बहुत प्रेज मिला, किसके लिए? उसके फर्स्ट नॉवल के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस है दे एन्जॉयड द लॉरेल्स ऑफ देयर मिलिट्री विक्ट्री. ओके, उन्होंने एन्जॉय किया, किस चीज़ को एन्जॉय किया उन्होंने? जो उनकी मिलिट्री विक्ट्री जो है उसको मिलिट्री विक्ट्री जो है, मिलिट्री में जो भी उन्होंने अचीव किया, ओके, वहाँ पे जो उन्हें जीत मिली, उसकी वजह से उन्हें ख्याति मिली, उनको तारीफ़ मिली, तो दे एन्जॉयड दैट फेम. ओके, तो फेम भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं एज आई हैव मैंशनड ख्याति. ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज बस्ट. बस्ट का मतलब होता है, कहते हैं ना, भ्रम तोड़ देना. आई एम गोइंग टू बस्ट दिस मिथ ऑफ यू. कहते हैं ना कि मैं ये मिथ तोड़ने जा रहा हूँ तुम्हारा या पब्लिक का, तो उस तोड़ने को हम बस्ट कहेंगे. दूसरा, स्टूडेंट्स चेस्ट को भी बस्ट बोला जाता है, राइट. पर्सन के हेड जो है और शोल्डर जो है और चेस्ट का जो स्कल्पचर है उसको भी बस्ट बोला जाता है. तो दोनों मीनिंग्स में आप ध्यान रखिएगा, एक तोड़ने से रिलेटेड है, एक आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है. ओके, सो मोस्ट कॉमनली वी यूज दिस वर्ड बस्ट टू ब्रेक समथिंग. ओके, ये वाला मीनिंग आपको ज़्यादा याद रखना है. नाउ कम टू एग्जाम्पल. Oh no, I have burst this CD player. That means, oh my God, I have cracked his CD player. मैंने उसका CD player तोड़ दिया. तो मीनिंग समझ में आ गया. बस का मतलब तोड़ना है यहाँ पे. सेम चीज़ यहाँ पे है, जैसे कुछ लोग चुप बैठे हुए हैं, एकदम से हंस पड़ते हैं, तो they busted into laughter. Okay, वो एकदम से हंस पड़े. Okay, now come to the next word that is adjunct. एडजंक्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहायक. ओके, दैट मीन्स कुछ भी एडिशनल समझते हैं, कुछ भी एडिशनल सप्लीमेंट्री ऐड ऑन करते हो, तो उन एडिशनल चीज़ों के लिए हम जो चीज़ एडिशनल करके किसी चीज़ में ऐड ऑन होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजंक्ट्स. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल. जैसे कि आप अपना सिस्टम लेके आए, आपने सिस्टम में कुछ ग्राफिक कार्ड्स डलवाए, मेमोरी को एक्सपेंड करवाया. आप करते हो ना, 32 GB से 64 GB आपने अपने सेलफोन की मेमोरी को एक्सपेंड करवा लिया. तो वो जो एडिशनल मेमोरी आपने एक्सपेंड करवाई है वो क्या है? इट एक्ट एज एन एडजंक्ट टू योर सिस्टम और टू योर सेल फोन. ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे नेक्स्ट वर्ड भी चलते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज प्रोटेक्टेड. and this word protected having PROTACT. Okay, not TECT. Protected, that means lasting for a long time, जो लंबे समय तक बना रहे उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टेड. आई थिंक समझ में आ गया होगा. लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई टिकी रहती है कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टेड. और यू कैन से एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोलॉन्ग्ड एंड रैम्बलिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. Now come to an example how to write this word. The war was protected for 4 years. Okay, जो युद्ध था, okay, उस युद्ध को 4 साल तक क्या किया गया? चलाया गया. दैट मीन्स वो युद्ध 4 साल तक चलता रहा. ओके, नेक्स्ट, वी वॉन विक्ट्री थ्रू प्रोटेक्टेड स्ट्रगल. समझ आया कि लंबे समय से जो हम स्ट्रगल कर रहे थे उससे हमें क्या मिली? हमें जीत मिली. वी वन विक्ट्री थ्रू प्रोटेक्टेड स्ट्रगल. तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, बट आई हेल्प यू हाउ टू राइट दिस, हाउ टू लर्न दिस वर्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. ओके, एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा. अभी लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन पे सब्सक्राइब कर. यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Okay, so thank you so much. Thank you very much, students.